Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing the 9th chapter, that is strategies for enhancement in food production. Students, we all know that world population that is increasing day by day, and our conventional agricultural practices, they are not sufficient to cater with the needs of the growing population. Therefore, scientists all over the world, they are planning new strategies for enhancing the food production. Students, in my previous lecture, I discussed about animal husbandry, and today we will be discussing on plant breeding. Now, what is plant breeding? Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation. और यूजुअली जो ब्रीडर्स हैं दे आर डेवलपिंग सच ब्रीड्स of plants which are giving better yields and which are found to be disease resistant. Green Revolution was dependent on a large extent on plant breeding techniques for the development of high yielding and disease resistant crops. तो Green Revolution students जो हुआ है that is only because of the introduction of high yielding varieties in our country and due to the disease resistant crops which were grown at that time and which were responsible for the huge production which leads to Green Revolution. Several varieties of wheat, rice, maize, they are developed by the help of plant breeding techniques. Now, the traits that breeder try crop plants to incorporate in. What traits the breeders want that the crop plants must have? First is the high yield. The new breeds which are developed, they must be high yielding. They must have better quality of produce. They should be tolerant to the adverse environmental conditions. They should be resistant to the pathogens which are causing various types of diseases. And they should have increased tolerance to the insect pest. So what are the various steps of plant breeding? First step है plant breeding का students collection of variability which is also known as germplasm collection. Second step है evaluation and selection of the parents. Third step is cross hybridization among the selected parents. Fourth, selection and testing of the superior recombinants. And fifth step is the testing, release and commercialization of new cultivators. So we will do all of these steps one by one. So students, the first step is collection of variability. स्टूडेंट्स प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का पहला स्टेप ही ये है बिकॉज प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराना है और दो प्लांट्स जो आपस में क्रॉस करवाए जा रहे हैं दे मस्ट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर्स. तो पहला स्टेप ये है कि मैक्सिमम जो है वेरिएबिलिटी कलेक्शन जो है हमारे पास होना चाहिए. वी शुड हैव मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन. We all know what are variations. Variations, they are the differences which are present among the individuals of the same species. And ये जो variations होते हैं, these are heritable and these are very useful in the process of selection. सो इन मैनी क्रॉप्स जेनेटिक वेरिएशंस अवेलेबल हैं जैसे वाइल्ड वेराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं, उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं. तो हर एक मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसकी जितनी भी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं वर्ल्ड में उनकी जीन्स को कलेक्ट किया जाता है. सो दिस ये जो कलेक्शन है डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़ का, स्पीशीज़ का, उनके क्लोज रिलेटिव्स का, हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील्स ऑफ ऑल जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रॉप, दैट इज नोन एज व्हाट जर्म प्लाज्म कलेक्शन. तो अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ को हमने क्रॉस करना है या एक स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करना है तो वो जो दो इंडिविजुअल्स हमने सिलेक्ट करने हैं फॉर क्रॉसिंग दे शुड हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर्स. तो उससे पहले हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए वेरिएबिलिटी का. तो वेरिएबिलिटी कलेक्शन जो है वो हम
डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं उनकी कलेक्शन से करते हैं. ये डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं, दीज आर दी वाइल्ड वैराइटीज़, दीज आर दी स्पीशीज़ एंड दीज आर देयर क्लोज रिलेटिव्स. सो फर्स्ट स्टेप है germ plasm collection. When we have a good collection of the germ plasm, then the next step is the evaluation and the selection of parents. ठीक है, तो next step होगा evaluation और selection of the parents. अब parents को select किया जाएगा for the crossing. सो जो कलेक्टेड सीड्स हैं, हमने जर्म प्लाज्म को जो कलेक्शन की है वो कलेक्शन या तो हमने जीन्स के फॉर्म में की है और वी हैव कलेक्टेड द जर्म प्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सीड्स. तो किसी भी फॉर्म में हमारी जो कलेक्शन है, तो हम जो कलेक्टेड सीड्स हैं, यूजुअली जो कलेक्शन होती है जर्म प्लाज्म की, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीड्स. सो कलेक्टेड सीड्स जो हैं उनको इवेल्युएट किया जाएगा फॉर आइडेंटिफाइंग द प्लांट बियरिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो अगर हम सपोज दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाना चाहते हैं और हमारा हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स लेके आना चाहते हैं इन दी हाइब्रिड, दैट इज़ दी हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हमें ऐसी दो वेराइटीज़ को सिलेक्ट करना होगा विच शुड हैव दी हाई यील्ड कैरेक्टर एंड विच शुड हैव दी डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर. सो इस तरीके से जो हमारा जर्म प्लाज्म कलेक्टेड है उसको हम इवेल्युएट करेंगे कि किसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, एंड द आइडेंटिफाइड प्लांट देन इट इज़ सिलेक्टेड एंड देन इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैव कलेक्टेड the parents, then they will be cross hybridized. So third step is the cross hybridization among the selected parents. Selected parents जो है उनको cross hybridize किया जाएगा. Hybridization का मतलब क्या है? That is the crossing of two selected parents differing in one or more characters. ठीक है, because we want a hybrid that should have the characters of both the parents. So we have taken two parents which are differing in their characters. सो हाइब्रिडाइजेशन जो है इट मेक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स पॉसिबल विच आर यूजुअली स्कैटर्ड है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, किसी के अंदर कोई अच्छा कैरेक्टर है, किसी के अंदर कोई अच्छा कैरेक्टर है, एंड वी वांट दैट देयर शुड बी वन वेराइटी विच शुड हैव ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स. सो इसका बेस्ट जो तरीका होता है दैट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द हाइब्रिड विगर. What is hybrid vigor? Hybrid vigor means the hybrid that is always superior to either of the two parents. So hybridization is very good for the introduction of hybrid vigor. Next students, so hybridization में हम crossing करेंगे selected parents की which are differing in one or more characters, and we all know what are the various steps of hybridization. First step is the emasculation. What is emasculation? Emasculation is the manual removal of anthers from the bisexual flower of the selected mother plant. ठीक है, तो मदर प्लांट जो हमने सिलेक्ट करना है उसके हमें एंथर्स को रिमूव करना पड़ेगा. तो मैनुअली जो है वो एंथर्स को रिमूव किया जाता है, एंड दिस स्टेप इज नोन एज emasculation. It can be done with the help of forceps method or hot water method. Emasculation is not required for selected mother plants with unisexual flower. अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन, बट इफ़ द फ्लावर्स दे आर बाइसेक्सुअल देन जिस प्लांट को हमने मदर प्लांट सिलेक्ट करना है उसके हमें एंथर्स को रिमूव करना पड़ेगा मैनुअली बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन. नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स बैगिंग और टैगिंग. जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसकी देखो बैगिंग की जाएगी, उसको एक पॉलीथीन शीट से या बटर पेपर से कवर किया जाएगा ताकि उसके ऊपर जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन जो हम चाहते हैं वो शेड हो, कोई दूसरा फॉरेन पॉलन ग्रेन जो है वो शेड ना हो. उसके बाद उसकी टैगिंग की जाएगी, उस पर एक छोटा सा टैग जो है देखो ये बैगिंग की गई है, फिर एक टैग जो है वो लगाया गया है, टैग के ऊपर हम डेट लिखेंगे इमेस्कुलेशन की, प्लांट का नाम लिखेंगे. सो इस तरीके से बैगिंग और टैगिंग की जाती है. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड स्टेप है डस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन. ठीक है, अब हम जिस प्लांट को हमने मेल प्लांट लिया है, ठीक है, उसके पॉलन ग्रेन्स को अब हम शेड करेंगे ओवर दिस मदर plant. So the matured pollen grains from the selected male plants, they are dusted on the stigma of the mother flower of the selected female parent plant.
और फिर उसकी दोबारा क्या कर दी जाएगी स्टूडेंट्स, रीबैगिंग कर दी जाएगी एंड इट विल बी अलाउड टू डेवलप इनटू द फ्रूट. सो दीज आर द 4 steps of the hybridization. And what is the significance of hybridization? Hybridization makes the combining of useful characters possible which are usually scattered in different varieties or races of the plants. तो hybridization एक बहुत ही अच्छा तरीका है यूजफुल कैरेक्टर्स को कंबाइन करने का जो यूजुअली स्कैटर्ड है इन द डिफरेंट वेराइटीज, एंड इट इज़ यूजफुल इन एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड विकर. So this was the 3rd step. So when we have done the process of hybridization, we have crossed two different varieties, then we have got the hybrids. Now 4th step है सिलेक्शन एंड सेल्फिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. अब जो हाइब्रिड्स ऑब्टेन हुए हैं या जो प्रोजेनीज ऑब्टेन्ड हुई हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, दे विल बी ऑब्जर्व्ड. उनको ऑब्जर्व किया जाएगा भी किसके अंदर डिजायरेबल कम्बिनेशन आया है कैरेक्टर्स का, बिकॉज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि उसके अंदर हाई यील्डिंग वाला कैरेक्टर आए, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर आए. तो अब जितनी भी प्रोजेनीज ऑब्टेन्ड हुई हैं आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, उनको इवेल्युएट किया जाएगा कि किसके अंदर ये डिजायर्ड कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स के आए हैं. दीज प्रोजेनीज दे आर देन सिलेक्टेड, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा केयरफुली, दे विल बी इवेल्युएटेड साइंटिफिकली फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लांट्स which are superior to both the parents and show hybrid vigor, उनको सिलेक्ट किया जाएगा. फिर हम देखेंगे तो इस तरीके से इवैल्यूएशन के बाद जिन प्लांट्स के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स होगा या जिन हाइब्रिड्स के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर होगा, हाइब्रिड विगर होगा, दे विल बी सिलेक्टेड और फिर उनकी सेल्फिंग की जाएगी. क्यों हाइब्रिड्स की हम सेल्फिंग कर रहे हैं? ओनली टू इंक्रीज दी होमोजाइगोसिटी, ताकि उनके अंदर ये जो डिजायरेबल जीन्स हैं ये होमोजाइगस स्टेट में आ जाएं. So this is the 4th step, that is the selection and selfing of the recombinants, superior recombinants. Last step है students, testing, release and commercialization of new cultivars. जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं दे आर देन इवेल्युएटेड फॉर देयर प्रोडक्टिविटी एंड अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जैसे क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंस. अब उनकी पूरी जो है वो इवेल्युएशन की जाएगी. इवेल्युएशन कैसे की जाएगी? उन प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा इन रिसर्च फील्ड्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है, कंट्रोल्ड उनको फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे, कंट्रोल्ड इरिगेशन किया जाएगा, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो हर एक चीज़ जो है वो उनको कंट्रोल्ड वे में दी जाएगी और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा. These plants they are then grown in natural fields. अब रिसर्च फील्ड में ग्रो करने के बाद जहाँ पे इन्हें कंट्रोल्ड कंडीशंस दी जा रही हैं, अब इन्हें एक्चुअल फील्ड्स में, ठीक है, नेचुरल फील्ड्स में ग्रो किया जाएगा इन डिफरेंट एग्रोक्लिमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग रीजन्स में, जैसे साउथ में ग्रो किया जाएगा, किसी को नॉर्थ में, किसी को ईस्ट में, किसी को वेस्ट इंडिया में. तो डिफरेंट रीजन्स में इनको डिफरेंट एग्रोक्लिमेटिक जोन्स में ग्रो किया जाएगा फॉर एटलीस्ट 3 growing seasons where the crop is usually cultivated, and then they are tested by agencies like IARI. IARI is the Indian Agricultural Research Institute which is in न्यू दिल्ली. फिर अल्टीमेटली इनकी जो टेस्टिंग है वो IARI में होगी और फिर जो कमिटी है दैट विल रिलीज द वैरायटी एंड देन रिकमेंड द रिलीज ऑफ द इम्प्रूव्ड वैरायटी अंडर अ न्यू ट्रेड नेम विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट जो है वो उस नई वैरायटी को रिलीज करेगी with a new trade name. So this is the last step of the plant breeding programs. So these are the various steps of the plant breeding program. Now students, next है topic green revolution. We all know that India is a agriculture based economy. हमारा जो 33% है of the total GDP, gross domestic product, it depends on agriculture. और 60% of the total population का occupation जो है that is the agriculture. तो ये जो स्टूडेंट्स 1960 और 70 के मिड में जो डेवलपमेंट हुई है हाई यील्डिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ वीट एंड राइस, इसने हेल्प किया फार्मर्स को टू अटेन रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. उस टाइम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन का एक हाई रिकॉर्ड जो है वो ऑब्टेन्ड हुआ था. तो ये जो अचीवमेंट है ऑफ रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, दिस इज़ नोन एज व्हाट ग्रीन रेवोल्यूशन.
द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स न्यूमरस, इसने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, साथ के साथ हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का वो भी इम्प्रूव किया। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन में स्टूडेंट्स हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो हैं देवर यूज्ड, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज़ की गई थी, पेस्टिसाइड्स देवर यूज्ड, और बिकॉज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस देयर वाज एन एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज़ नोन एज व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो हैं क्रॉप्स की, स्टूडेंट्स इन दी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो पीरियड है बिटवीन 60 to 2000 विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल प्रोडक्शन। वीट की प्रोडक्शन स्टूडेंट्स 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन्स, ठीक है, तो 7 टाइम्स जो है एनहांस प्रोडक्शन हुई है। राइस की प्रोडक्शन अर्लियर थी 35 मिलियन टन्स एंड इट हैज़ इंक्रीज टू 89.5 मिलियन टन्स। सो दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ स्टूडेंट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इंडिया ने खुद भी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जो है उनको डेवलप किया है। सो ओन दिस ग्रीन रेवोल्यूशन और दिस एनहांस्ड प्रोडक्शन दैट वाज ओनली ड्यू टू द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ wheat and rice. Students at International Center of Wheat and Maize Improvement in Mexico, the Norman Borlaug, who is the father of Green Revolution, he developed semi-dwarf varieties of the wheat. So semi-dwarf varieties of wheat, they are developed by Norman Borlaug at the International Center for Wheat and Maize Improvement. हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं स्टूडेंट्स वीट की, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, दैट इज़ सोनालिका एंड कल्याण सोना। So these Sonalika and Kalyan Sona, they were selected and they were introduced in different wheat growing regions of India in 1963. इसी तरीके से सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ राइस की जो डेवलप्ड हुई हैं और जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी है, दैट इज़ IR8। IR8 फॉर्म्ड हुई है एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। और दूसरी वेराइटी है स्टूडेंट्स राइस की, दैट इज तैचुंग नेटिव विच इज डेवलप्ड इन दी ताइवान, एंड द डेरिवेटिव्स दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऑल ऑफ दीज वेराइटीज of wheat like Sonalika, Kalyan Sona, IR8 and Tachung Native 1, they were introduced in India in 1966 and बेटर यील्ड सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जैसे जया और रत्ना ये इंडिया में डेवलप हुई हैं। सो ये वेराइटीज़, कई वेराइटीज़ जो है वो इंडिया में इंपोर्ट की गई थी, कई वेराइटीज़ इंडिया ने खुद भी डेवलप की हैं जैसे जया और रत्ना है। दीज आर दी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ विच आर डेवलप्ड इन इंडिया। Some other high yielding varieties of the wheat are Sonara 64, Larma Rojo 64, Safed Larma and Sharbati Sonara, etc. High yielding varieties of rice, they are Vijaya, Padma, Kanti and Jayanti. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शुगर केन की भी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो है वो डेवलप्ड हुई हैं इन अवर कंट्री। शुगर केन वी ऑल नो दैट इज़ कल्टिवेटेड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया जो है दैट इज़ द मेजर शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्री है। सेखरम बारबराई, ये स्टूडेंट्स जो वेराइटी है शुगर केन की, ये कल्टीवेट की जाती है नॉर्थ इंडिया में, बट इसकी जो ये कल्टीवेट की जाती थी अर्लियर, इट वाज कल्टीवेटेड सो इन नॉर्थ इंडिया, बट इट वाज हैविंग अ वेरी पुअर यील्ड एंड लो शुगर कंटेंट। वेरएज जो सेखरम ऑफिसिनारम है जो कि साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है, इसका शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और इसकी यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, बट ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू फेस ऑल दी क्रॉप डिजीजेस। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वेराइटीज़ जो हैं शुगर केन की, इनको आपस में क्रॉस करके एक नई वेराइटी जो है, नई वेराइटीज़ जो है या नए हाइब्रिड्स जो हैं वो शुगर केन के तैयार किए गए हैं। और ये जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं ऑफ दीज टू स्पीशीज़ ऑफ शुगर केन, दे हैव द डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस, जैसे हाई यील्डिंग भी हैं, हाई शुगर कंटेंट भी हैं, रेजिस्टेंट हैं टुवर्ड्स दी डिजीजेस। और ये जो नई हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप हुई हैं शुगर केन की, ये सक्सेसफुली ग्रो भी कर रही हैं इन दी नॉर्थ इंडिया।
So they are growing in every part of in every part of the country. Some varieties of sugarcane or hybrid varieties of sugarcane which is developed at Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore of India, they are CO 421, 419, 205, 453 एंड 740. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से शुगर केन की भी नई वेराइटीज़ जो हैं हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप हुई हैं बाय क्रॉसिंग दी सिलेक्टेड पेरेंट्स. Some high yielding varieties of millets, they are also being developed. Millets, we all know, that is a general term for the grasses yielding small seeded edible grains. For example, jawar, bajra, maize, these are the examples of the millets. And hybridization, it has resulted in the development of many high yielding varieties which are found to be resistant towards the diseases, which are found to be resistant to water stress also. So with the help of plant breeding programs, we have seen that several varieties of wheat, rice, sugarcane, millets, they have been developed in our country. सो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ स्टूडेंट्स वीट के एग्जाम्पल हैं सोनालिका, कल्याण सोना, सोनारा 64, लरमा रोजो 64, सेफ्ट लरमा, शरबती सोनारा. राइस की वेराइटीज़ हैं जया, रत्ना, विजया, पद्मा, कांति एंड जयंती. और शुगर केन की वेराइटीज़ हैं CO 421, 419, 205, 453 and 740. So students, this was all about the various steps of plant breeding programs. और plant breeding program से किस तरीके से हमने देखा कि how the new varieties they have been developed by the breeders. और ये जो नई varieties है for example wheat और rice, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा contribution दी है to the green revolution. कई varieties जो है वो import की गई थी wheat और rice की in the 1960s, और जिन्होंने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनहांस किया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एनहांस किया है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर.